Hi students, I am Jiten Pandey on the behalf of Ayodhya Academy. Welcome to you. As you know that our government have reformed education policy of India. So as a teacher I want to explain some important feature of new education policy 2020. It is designed by former scientist of ISRO Dr. Krishnaswamy Kasturi Rangan. Students, let's understand new education policy of India. There are only three reforms held in India till now. First in 1968, second in 1986, and third is 2020. This is also known as a new policy of India. Students, if we are comparing education policy of 1986 to new education policy 2020, there are huge difference found between them. In 1986, the theme of education depends on 10 plus 2. Under this, you are learning your academic classes from 1 to 12. But under new education policy 2020, it has been changed into 5 plus 3 plus 3 plus 4. Student, as you know, in education policy 1986, students are ready for schooling and they start to learn bookish knowledge at the age of 6. But in current education system, children are ready for schooling at the age of 3 years and they enjoy next 3 years in the school only for playing. They have no any kinds of examination, no any kinds of homework, and next 2 years they spend for class 1 and 2. Now they start learning with fun. There are also no exam. After this 5 years, students, you will reach in foundation stage for 3 years. This is also known as class 3 to 5. Under this, you will learn with the help of activity. Now in the section, you have an opportunity to learn in your regional languages. Now in this stage, your examination will be start. After this, you will reach middle stage for 3 years. This is also known as class 6 to 12th. Under this stage, you will learn computer code, vocational courses, math, science, arts. In this stage, you also have an opportunity to learn any Indian languages. After this, you will reach secondary stage for 4 years. It is also known as class 9 to 12th. The reforms of this stage are very important because there are no foundation for STEAM. So you have opportunity to select multiple subjects. For example, you can study maths, biology and accountancy together. Here you start critical thinking and also has opportunity to learn a foreign language. I means बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको कवर करने का प्रयास किया है। तो नई शिक्षा नीति को हम और अच्छे तरीके से समझेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में कुछ और भी जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने अपने टॉपिक में जो आपका फाउंडेशन स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज को हमने एक्सप्लेन करते हुए बताने का प्रयास किया कि पहले क्या होता था। पहले 6 ईयर में जो स्टूडेंट होते थे, बच्चे होते थे, वो स्कूलिंग करना स्टार्ट करते थे। लेकिन जो स्कूल का सिस्टम था, बच्चा फर्स्ट डे स्कूल जाता है और जाते ही उसको पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ये सारी चीज़ें दी जाती हैं और बच्चा अजीब फीलिंग उसके अंदर आता है, क्योंकि बच्चा तब तक वो बहुत मासूम होता है और अचानक उसे आके तुरंत कॉपी, पेन, बैग्स ये सारे लॉगेज मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बर्डन फील करता है और जब वो सेकेंड डे स्कूल जाना उसको होता है तो वो कहता है कि नहीं, हमें स्कूल नहीं जाना, क्योंकि उसको बहुत बुरा फील होता है। उससे कुछ कराया जाता है, डायरेक्ट वो एजुकेशन में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, वो लर्निंग में, बुकिश नॉलेज में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। सो उसको बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसी को अपडेट करते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रयास किया है कि भारत के हर गांव से, हर ब्लॉक से सर्वे कराई गई है और उसको देखते हुए जो डिसीजन लिया गया है वो लिया गया है। तो इससे अब बच्चा 3 ईयर्स पे स्कूल जाएगा, उससे 3 ईयर पहले ही स्कूल जाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसमें नया क्या है, अब स्कूल जो है, जो स्कूल होंगे उनको कुछ भी बच्चों को नहीं कराना है, उनको एक इन्वायरमेंट देना है कि जिससे बच्चा अच्छा
प्लेइंग कर सके, खेलने के लिए उनको इन्वायरमेंट देना है, उनको जो अच्छा लगता हो, जो भी उसको अच्छा लगता है, बच्चों को अगर लगता है कि हम धूल में खेलेंगे तो उन्हें धूल में खेलने का इन्वायरमेंट दिया जाए। बच्चे अगर क्ले से खेलना चाहते हैं तो वो भी इन्वायरमेंट दिया जाए। बहुत सारी जो एसेसरीज हैं वो उनको अवेलेबल कराई जाएगी और बच्चे घर से बेहतर स्कूल में खेल पाएंगे। और इससे क्या होगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा एजुकेशन को लेके, और जहाँ वो पहले डरा करता था वो जो है वो डर उनके अंदर नहीं रह जाएगी। हम आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, और उस एग्जाम्पल पे हम समझते हैं कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी 1986 की थी उसमें और इसमें क्या अंतर है। एक बच्चा जो होता है वो अपने पिताजी की साइकिल के ऊपर बैठ के स्कूल जा रहा होता है, और साइड में एक कसाई की दुकान होती है, और कसाई जो है बकरे को बाहर खींचता है, और जो बकरा है वो आवाज़ करता है। तो बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा ये क्या है। तो वो बच्चा बोलता है कि अ, उसका पिता बोलता है कि बेटा ये जो है ये कसाई है और उसे काटने के लिए बाहर खींच रहा है, तो इसलिए ये आवाज़ कर रहा है। तो उसका बेटा बोलता है अच्छा पापा, मैंने सोचा कि इसको शायद स्कूल ले जा रहे हैं इसलिए रो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बच्चा, इस एग्जाम्पल से हम सीख पाए कि जो बच्चे होते थे जब वो पहले दिन स्कूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं इतना डर उनके दिमाग में होता है, और इसी डर को निकालने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्लान किया है कि अब बच्चे को कुछ बिना डर के माहौल में सीखने का एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए, जिससे अच्छी एजुकेशन बच्चे ले सकें। और जो हमारा फाउंडेशन स्टेज है उसमें एग्ज़ाम भी नहीं हमें लेना है, तो बच्चे इससे बहुत फ्री फील करेंगे, और वो बच्चे जो कभी स्कूल जाने से रोया करते थे वो स्कूल दौड़ के आएंगे और कहेंगे हम स्कूल जाएंगे, अब स्कूल जाने के लिए रोएंगे। ऐसा प्लान करके गवर्नमेंट ने जो एनईपी है उसको तैयार की है। सेकंड, अब हम आएंगे डायरेक्ट आपके सेकेंडरी स्टेज पे, क्योंकि यहाँ जो सेकेंडरी स्टेज है उस पर बहुत ज़्यादा जो है चेंज किया गया है, और आई थिंक ये अच्छा है। सारी चीज़ें हमने अपनी पहले की स्पीच में दे दी है, चीज़ें आप समझ सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि अब जो एग्ज़ाम्स होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे। जो आप एनुअल एग्ज़ाम सिस्टम था तो बच्चे बस एग्ज़ाम से 2 ईयर पहले ही पढ़ना चाहते थे। उससे क्या होता था कि एग्ज़ाम के लेके उनके अंदर थोड़ी सी जागरूकता होती कि मेरा एग्ज़ाम है तो हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको देखते हुए अब हर 6 मंथ पे एग्ज़ाम कराने की व्यवस्था की है। इससे बच्चे कंटिन्यू अपना स्टडी है उसको जारी रखेंगे। और जो मेन चेंजिंग आया है वो हमारे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इस विभाग में देखने को मिलता है। क्योंकि अब हमारे यहाँ जो 10+2 है उसमें क्या है कि अब हमें स्ट्रीम के साथ नहीं पढ़ाई करना है। हमने बताया ही कि है कि यहाँ देयर आर नो स्ट्रीम फॉर एनी काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे किसी भी बच्चे के लिए जो कोई स्ट्रीम नहीं है कि आप ये बायो के स्टूडेंट हो या मैथ्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के संख्यानिकी के स्टूडेंट हो। तो अब आप क्या है, आप मल्टी सब्जेक्ट से आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें मैथ्स मैथ्स, बायोलॉजी एंड अकाउंटेंसी, अब ये जो है सारे को हम एक साथ लेके चल सकते हैं। पहले क्या था, स्ट्रीम सिस्टम होता था तो उसमें बायो का बच्चा मैथ्स नहीं और अकाउंटेंसी का बच्चा मैथ्स और बायो नहीं ले सकता था। तो ये सारी चीज़ें हट गई है, और इसी का बेनिफिट हमें ग्रेजुएशन लेवल में मिलता है। ग्रेजुएशन लेवल में हम देखते हैं कि अब बीए, बीएससी, बीकॉम, इन सारे नामों से हम लोग जो आपका ग्रेजुएशन है उसको नहीं जानेंगे, केवल हम ग्रेजुएशन के नाम से ही जानेंगे। और इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें भी हम कोई भी सब्जेक्ट का कम्बिनेशन करके हम लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और उसमें इसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज है, जब हम 1 ईयर की पढ़ाई करते हैं तो हमें एक जो एक जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसे हम सर्टिफिकेट बोलेंगे। जब आप 2 ईयर का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलता है। आफ्टर 3 ईयर यू विल गेट डिग्री, एंड जो आपका 4th ईयर होगा, 4th ईयर के बाद जो आपको मिलेगा उसे हम लोग रिसर्च बोलेंगे। और सबसे मेन एडवांटेज इसमें ये है कि जो बच्चे पुअर फैमिली से हैं या मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो सेल्फ से अर्निंग करके उसको अपनी पढ़ाई करते हैं, किसी कारणवश जो बीच में अपनी एजुकेशन को ड्रॉप करना करना पड़ता था, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा प्लान है कि वो बीच में जैसे 1 ईयर का उन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया या 2 ईयर का उन्होंने अपनी डिप्लोमा ले ली, और कोई प्रॉब्लम आ गई जिससे कि उनको अपनी जो एजुकेशन है उसको ड्रॉप करना पड़ा, तो आप आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर्स जब भी उनके पास मनी होता है, फी उनके पास होता है, तो आके अगेन वहीं से वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो 2 ईयर उनका सुरक्षित रहेगा, और आके उनको आफ्टर 1 ईयर उनको डिग्री की ही मिलेगी कोर्स।
एक चीज़ इसमें और हम बताना चाहेंगे, जिसमें जो बच्चे 4 ईयर का ग्रेजुएशन करेंगे उनको पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 ईयर का ही करना पड़ेगा, 1 ईयर पीजी करना पड़ेगा। और जो बच्चे इसमें 3 ईयर से ग्रेजुएशन करते हैं उन्हें 2 ईयर का पीजी करना होगा। स्टूडेंट, सबसे इसमें जो मेन चीज़ हमें लगी वो इसमें ये लगता है कि रिजल्ट का सेक्शन, जब जो बच्चे एकेडमिक क्लासेस में होते हैं तो एकेडमिक में जिसमें रिजल्ट का सिस्टम दिया गया है, तो रिजल्ट में क्या करना है कि आप ही को इसमें जो पहला होगा वो आपके मार्क्स होंगे जो आपके रिटर्न वर्क से लिए जाएंगे। जो सेकेंड इसका स्टेज होगा उसमें क्या करना है कि स्टूडेंट सेल्फ से ही अपनी मार्किंग करेगा। थर्ड जो इसमें स्टेज किया गया है तो थर्ड स्टेज में उसके फ्रेंड उसके वर्क की मार्किंग करेंगे। और जो फोर्थ स्टेज होगा वो टीचर होगा, टीचर भी उसका मार्किंग करेगा, यानी उसके बिहेवियर को देख के, उनके व्यवहार को देख के, ये सारी चीज़ों का जो है रिजल्ट पे इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे एक सुधार आएगी कि लोग जो है अपने अंदर एक सामाजिकता वापस से आ जाएगी, जो कहीं ना कहीं अब बहुत दूर हो गई है हमारी शिक्षा से, तो वो वापस आएगी। हम अपने दोस्तों के साथ अच्छे बिहेव करेंगे, हम अपने टीचर के साथ अच्छे बिहेव करेंगे। द कंक्लूजन ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020। The new educational policy 2020 is a good policy as it aims at making the education system holistic, flexible, and multidisciplinary, aligned to the need of 21st century and the 2030 Sustainable Development Goals. I hope, student, you will gain knowledge through this video. Thank you.